GST and taxation in real estate transactions. So here, I would also like you to review my second screen where I will be presenting some Excel in terms of the discussions that we would like to take forward in terms of GST. So, what do we understand by GST? Anybody? Like, I would request this session to be a little more on the interactive side so that we enjoy the conversations. Yes, I've shared my Excel on the other side so I can give few examples for everybody. Yeah, right. So, what do we understand by GST? Okay, on real estate transaction and type of GST. Okay, so now there are different type of GST rates for different properties when it comes to a homeowner or a home buyer, and there's a different type of taxation when it comes to GST when it for this is homeowner or home buyer seller, and second is us, that is real estate agent. Now for a homeowner home buyer, we have three kind of taxations. One is in case if the property value, okay, if it's an under construction property, which is very simple, is less than 45 lakhs, then you will pay only 5% of the GST value. That is if you are constructing a property. And if your property value exceeds 45 lakhs, you will only pay 12%. Now, one thing is very clear that this property, the discussions that we are having right now, is more from a perspective of a developer or a buyer or a seller. Okay, whereby the taxations will differentiate depending on the value of the property. Now, why there is no property tax in land and why there is property tax in a constructed or a moved on property? The difference being is that GST is nothing but a value added tax. In case of a land, okay, वो घास आप जाके उस पे घास बोते नहीं हो, right? So there is no addition to a land. Okay, that's the reason there is no GST applicable on a land. While as on a property where you construct the property, आप उसके ऊपर वैल्यू ऐड, तो जो भी वैल्यू ऐड होती है उसमें आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगता है. ओके, सो दैट्स द रीजन द लैंड, प्लेन लैंड, अगर 100 एकड़ लैंड बेचते हो, 200 एकड़ लैंड बेचते हो, 5 एकड़ लैंड बेचते हो, आपको टैक्स नहीं लगता है. बट आप जब किसी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पे बेचते हो या फुल फ्लेजेड वैल्यूड प्रॉपर्टी बेचते हो, तब आपको उसको टैक्स लगता है. बट वी एज रियल एस्टेट एजेंट्स, ओके, वी हैव अ डिफरेंट टैक्सेशन रिजीम, दैट इज वी पे 18% GST. दैट इज प्लेन एंड सिंपल. ओके, 9% आता है CGST और 9% आता है आपका SGST. CGST मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, SGST मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स. ये टोटल मिला के आपका GST कंपोनेंट आता है आपके रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन पे 18%. तो इसमें और एक कंपोनेंट भी आता है, दैट इज 18% IGST, दैट इज इंट्रा स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स. ये भी एप्लीकेबल होता है डिपेंडिंग, अगर आप एज अ होम ओनर अलग स्टेट में हो और आपका प्रॉपर्टी एक अलग स्टेट में है. हियर आपके से फॉर एग्जांपल एक एजेंट, ओके, एक प्रॉपर्टी बेचता है इन गोदरेज फॉर अराउंड 10 lakhs, 1 crore. ओके, तो ये 1 crore की प्रॉपर्टी पे EXP का कमीशन अज्यूम 3% की रेट पे अराउंड 3 lakhs. तो इसके ऊपर EXP GST लगाएगा, दैट इज 9% CGST और 9% SGST, और टोटल बिल जो गोदरेज को जाएगा वो जाएगा फॉर 3,54,000. ओके, ये अगर ये गोदरेज की प्रॉपर्टी हुई नोएडा में और EXP ने भी अपने नोएडा ऑफिस से इनवॉइस रेस किया, बिकॉज दैट इज अ प्री प्राइमरी कंडीशन. आई थिंक कोई वॉइस इशू आ रहा है, आप री इंश्योर कर सकते हैं कि यस आपको PPT मिल जाएगा. यू कैन राइट टू अस एंड वी कैन सेंड यू एवरीथिंग. क्योंकि यहाँ पे आपका जो प्रॉपर्टी है वो यूपी में है, नोएडा में. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल फॉर अ प्रॉपर्टी एंड द एजेंट बोथ बीइंग इन यूपी.
सेम गोज फॉर EXP. हमारी EXP की नोएडा ऑफिस है और गोदरेज के में भी अपने नोएडा में प्रॉपर्टी बेची है. इसके अंदर तो मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ये आएगा कि ये जो प्रॉपर्टी अपन गोदरेज की बेच रहे हैं ये नोएडा में होनी चाहिए, दैट इज यूपी में, एनीवेयर इन यूपी. That's why we call it state GST, that is state goods and service tax. The reason being is the place where the property is located is one of the utmost important condition when it comes to goods and service tax. Even when an agent is doing transaction and it is a professional service that he is providing, still because we are a part of real estate, it is very important that जो स्टेट में ये प्रॉपर्टी लोकेटेड है उसी स्टेट के GST लॉज एप्लीकेबल हों. जस्ट अ सेकंड गाइस, आई थिंक सम गेस्ट्स आर हैविंग इश्यूज विद हियरिंग. is am I audible, Viji, or anyone, if you Yes, can tell you us? are audible. Yeah, Mansi, Yes, you are audible. Sometimes Yeah. it's connectivity issue, I think, at their end. Yeah, okay. So ये बात क्लियर है कि स्टेट इन विच द प्रॉपर्टी इज रजिस्टर्ड वो स्टेट सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा. इवन इफ यू आर अ एजेंट और इफ यू आर अ प्रॉपर्टी ओनर, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर एन एजेंट इज वेयर द प्रॉपर्टी इज लोकेटेड. इसीलिए आप हमेशा जब अब्बास, नवाज या तरुण आपको रीच आउट कर रहे हैं उनके लिए ये बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आप कौन से स्टेट में ये प्रॉपर्टी अवेलेबल है. इज इट वेरी क्लियर टू एवरीवन? Yes. Great. Any doubts in this? Any questions in this? Now, second, I would like to move on. What is it? आवाज नहीं आ रही है अभी फिर से मैडम. I think sir आपको ना एक बार एग्जिट करके because तो अगर everybody किसी को else. भी नेटवर्क में ये आवाज नहीं आ रही है तो आप लोग रिफ्रेश कर सकते हैं and जी, then it will जी. come. Yeah. Yes, please continue, Mansi. Yeah, sure. Why is GST added? ना एक आप पर्पस बता सकते हैं क्यों आपको लगता है कि गवर्नमेंट GST क्यों ऐड करता है आपके प्रॉपर्टी पे? एनीबडी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, GST in real estate is one of the major contributor to the GDP of the country. GDP मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. आपका जो सब रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन हो उससे गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है और वो गवर्नमेंट का जो फ़ायदा है वो इन टर्न आपके पास आता है. ओके, दिस इज यूटिलाइज टूवर्ड्स प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू यू. नाउ इसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है GST फाइलिंग की, जस्ट अ सेकेंड गाइस, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. हाँ, सो GST प्राइसिंग ऑफ द प्रॉपर्टी और प्राइस ऑफ द प्रॉपर्टी यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. यहाँ पर जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि 3 लाख का हमने इनवॉइस रेज किया, सेम वे ये जो 1 करोड़ प्रॉपर्टी की प्राइस, बेस प्राइस फिक्स होती है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इवन व्हेन इट कम्स टू अ होम ओनर और अ होम बायर. यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी की प्राइस फ्रीज करना बहुत ही ज़रूरी है. दैट इज़ आपकी बेस प्राइस फ्रीज करना बहुत ज़रूरी है जिसके बेसिस पे सारे GST एप्लीकेबल होते हैं. नाउ सारे कंप्लायंसेस जो GST पे करता है उसके ऊपर डिपेंड. आपको इंश्योर करना है कि आप अपने आप को ये पे करके आपके जो टैक्सेशंस है, आप अगर GST रजिस्टर्ड हो, व्हाट इज अ GST रजिस्टर्ड और अ GST नॉन रजिस्टर्ड एजेंट और अ GST रजिस्टर्ड इंडिविजुअल. अगर आपने किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, किसी भी फाइनेंशियल ईयर का मीनिंग सबको पता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, आपने किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 20 लाख इनकम कमाई तो आपको कंपल्सरी आपको EXP में आपको गवर्नमेंट के साथ अपने आप को एज अ GST रजिस्टर्ड एजेंट प्रूव करना पड़ेगा. इसके लिए मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जांपल देना चाहूँ. आप पानी पूरी वगैरह खाते ही होंगे, राइट? तो पूरी का ठेला था बॉम्बे में, ठीक है. आजकल सब लोग पेमेंट कैसे करते हैं? कैश से पेमेंट तो कोई करता नहीं, सब अपना अपना जीपे. अब ये ठहरा अपना भैया, ये रेगुलर बेसिस पे ट्रांजैक्शन करता था, बहुत सालों से पानी पूरी बेच रहा था. अब जीपे और पेटीएम और नए तरीके आने के चक्कर में सारी पानी पूरी की पेमेंट जाने लगी उसके बैंक. अब बिलीव क्योंकि उसका एनुअल टर्नओवर 20 लाख के ऊपर हो गया. वो पहले भी 20 लाख के, मगर क्योंकि वो कैश में ट्रांजैक्शन हो रही थी तो गवर्नमेंट को दिखाई नहीं दे. तो जैसे ही आपके बैंक अकाउंट जो आपके पैन नंबर से लिंक होता है,
It is very important, okay? All your bank accounts are tracked with your PAN number. All your PAN accounts, क्योंकि आप किसी भी बैंक में खाता नहीं खोल सकते बिना अपने पैन कार्ड के, करेक्ट? दैट इज अ सिंपल लॉजिक. तो जैसे ही आपके अकाउंट में 20 लाख के ऊपर इनकम रही, आपको खुद जाके अपना कंप्लायंस करना पड़ेगा. यहाँ पे EXP ने तो अपने कंप्लायंस करके रखे हैं, इसीलिए EXP ने 10 स्टेट्स में अपने GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लिया. मगर यू एज एन इंडिविजुअल एजेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आपको खुद अपना GST, EXP आपको इन्फॉर्म के ऊपर पेमेंट कर रहा है, एज ए EXP होगा कि हम आपके अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर करें. लेकिन इसके बाद आपकी GST रिटर्न फाइलिंग, उसको GST रिकन्सिलेशन, एनुअल GST रिटर्न फाइलिंग, मंथली GST रिटर्न फाइलिंग, ये कंप्लीटली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इसीलिए ये बहुत क्लियरली कहा गया है कि GST के अंदर जितने भी टैक्स कंप्लायंसेस होते हैं वो इंडिविजुअल एजेंट्स, इंडिविजुअल कंपनीज की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. सो आवर एजेंडा इज कि आपके अकाउंट में 20 लाख से ज़्यादा ही इनकम दे, ताकि यू कैन गेन मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ बीइंग एन EXP एजेंट. But yes, all the compliances will have to be individually maintained by you. Is that clear? And that is applicable for us also as EXP. All the compliances with respect to payment of GST, doing GST reconciliations is completely our responsibility. अगर आपकी इनकम 20 लाख के अंदर रही तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. हम गवर्नमेंट को रेगुलर बेसिस पे टैक्स पे करते हैं. आप हमारे पास से कोई भी रिकॉर्ड चेक करवा सकते हो. इफ इट इज नॉट इन अगेंस्ट आवर इंटीग्रल मैटर, वी कैन डेफिनेटली गिव यू एन इन्फॉर्मेशन कि हम लोग ने आपका GST पे कर दिया है, एंड वी कैन शेयर सिमिलर इन्फॉर्मेशन with you people. Now, Yeah, I have a quick question on this one. Sure. I believe this is a common question. So, इसके अंदर जैसे the income should not be from one source; it can be from the multiple sources, right? Correct. It can be from multiple sources. Correct. Right. And also at the time when the agents will be filing, so will they be getting the GST as well in return, or how does that work? See, now I'll tell you that. A very, very good question, Tarun. There are multiple incomes, okay? एक है income from other sources, income from business and profession, income from salary, okay? आपकी, और ये है आपका PAN number, okay? So now कि income from other sources और आपकी income from business and profession अगर टोटल मिला के 20 लाख के ऊपर गई तो आपको GST की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि दोनों ही केसेस में आपकी इनकम जा रही है बियॉन्ड. इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज क्या होता है? जैसे आपको FD का इंटरेस्ट आया, इन सब का इंटरेस्ट आया आपका, अगर लेकिन आपका मेन बिजनेस एंड प्रोफेशन ही है कि आपकी बिजनेस यही है कि आप हर बैंक में अपना पैसा FD में डालते हो और उससे आपका पेमेंट आता है, तो वो आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन हो जाएगा. अगर आपका रियल एस्टेट का बिजनेस है, दैट इज आप ब्रोकर हो, तो आपको उसमें से जो भी इनकम आएगी वो आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो ना, तब आप स्पेसिफिकली आपकी इनकम अलग अलग बताते हो कि ये मेरी अदर सोर्सेस है, जैसे मेरी FD से रिटर्न आ रही है, और ये मेरी जो इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन है, दैट इज जो मेरा बिजनेस है, मेन बिजनेस है, उससे मेरे को इनकम आ रही है. लेकिन अगर आपकी सैलरी इनकम 1 करोड़ की है, ओके, तो आपको GST लेने की जरूरत नहीं है. अगर आपकी सैलरी इनकम 25 लाख की भी है तो आपको GST नहीं है, क्योंकि आपका 30% टैक्स ब्रैकेट, मतलब अब तो 12 लाख के ऊपर फ्री हो गया है, मगर जैसे ही आपकी इनकम 12 लाख के ऊपर जाती है आपको ऑटोमेटिकली आपका TDS कटेगा 30%, अप टू 30%, और आपका ये कंप्लायंस आपकी सैलरी कंपनी फुलफिल करेगी. ठीक है? तो तरुण, इज दैट क्वेश्चन क्लियर? अगर आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन है तो आपको GST लेना पड़ेगा. अगर आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी है तो आपको GST लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका TDS डिडक्ट होगा, और वो TDS गवर्नमेंट, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है वो गवर्नमेंट को देकर वापस आएगा. Does Right. that solve your question? Yeah, it does. But however, the thing is that, for example, let's say, take an example of Deep. Deep is an agent with EXP. He is working as a freelancing agent, and he's earning on 20 commission of 20 lakh rupees. Correct. And he has other sources of income as well. Correct. Everything will be Right. clubbed together. Income, Exactly. income But then, from real estate, income
I'm just giving an example. Income Yeah. from house property, how rental, Exactly. income from shop, all of this will be combined. But the income from real estate, as we are getting the GST from the developer side, so we will be getting the GST part as well. So that because we have to pay that to the government, right? Correct. So I will explain that in detail. That's again a very good question. I generally take this question up when we do this. अभी फॉर एग्जाम्पल हम इस स्लाइड पे वापस आ जाते थोड़ा ऊपर. ये हमने 3,54,000 का इनवॉइस रेस किया. किसको? ये जीएसटी का इनवॉइस गोदरेज को. ठीक है. इसमें 25% 75% स्प्लिट होता है ना. ईएक्सपी के केस में ये ईएक्सपी रुपी हो जाता है, ये एजेंट है ना. अब क्या होगा अगर आप नॉन जीएसटी एजेंट हो ना, तो आपको 3 लाख का 75% दिया जाएगा. दैट इज 2,25,000 आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगा. लेकिन अगर आप जीएसटी एजेंट हो, ओके, तो जीएसटी एजेंट रुपी अंदर आ जाएगा 3,54,000 का 75% इज 265. मतलब ये जो 54,000 जो जीएसटी हमने एडिशनली गोदरेज को चार्ज किया है, उसका बेनिफिट भी आपको चला जाता है. तो आपका कैश फ्लो जो है वो एज ए जीएसटी रजिस्टर्ड एजेंट बढ़ जाता है और आपको उतना एडिशनल कैश फ्लो आपके अकाउंट में मिल जाता है. हम लोग और एक कंपोनेंट, बिकॉज आज टैक्स की बात हो रही है, दैट इज टीडीएस. तो टीडीएस ऑन रियल एस्टेट ब्रोकरेज ट्रांजैक्शन इज 2%. तो हम टीडीएस काटेंगे. आप See, I have a question. 1 second, just give me 1 second. Non GST agent, GST agent. I'll make it little simpler for you. ये EXP रुपी दोनों ही केसेस में सेम रहेगा. आपका कंपोनेंट भी सेम रहेगा. आपको एडिशनल जीएसटी EXP ट्रांसफर करेगा. तो आपका कैश फ्लो एंड लेस. अच्छा, तो यहाँ पे आपको क्या एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ कि अगर मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन था. सॉरी टू इंटरप्ट. मेरे को कंफ्यूजन ये हुआ अभी, जैसे आपने अभी तक हमें ये लग रहा था कि जो हम जीएसटी कलेक्ट कर रहे हैं क्लाइंट से, वो ओवरऑल ईएक्सपी इंडिया के रेवेन्यू के बेसिस पे हम कलेक्ट कर रहे हैं. बट अभी आप जैसे कह रहे हैं कि इंडिविजुअल एजेंट की जो रेवेन्यू है उसके ऊपर जीएसटी मतलब हमें एलिजिबिलिटी आ रही है, राइट? So for example, again, here आपका क्वेश्चन कंप्लीट करें, Alex. So I just got confused right now when you were giving this example of 3,54,000. So for example, if agent A is at a revenue of say 25 lakhs per in a financial year, and agent B is in a revenue bracket of 10 lakhs per year. So अगर वो 25 lakhs वाले के ऊपर जो GST लग रहा है वो उसकी GST liability है, बट 10 lakhs एलिजिबिलिटी वाले एजेंट के ऊपर जीएसटी लायबिलिटी नहीं है और वो जीएसटी उसके ऊपर आएगा, या वो जीएसटी का वेवर अपने क्लाइंट को दे सकता है? दिस इज व्हाट यू ट्राइंग टू से? No, I again a good question. I would like to clarify this. Agent A, okay, ये 10 लाख ये उसका फाइनेंशियल ईयर है 23-24, या ये 21-22, 23-24, 24-25, जस्ट एग्जाम्पल. ठीक है. इसकी हर साल में, इवन फ्यूचर इयर्स में 10-10 लाख रुपए की और इसकी हर साल में 25-25 लाख रुपए की इनकम है. ठीक है. इसके पास कोई चॉइस नहीं है, बट इसको जाना पड़ेगा जीएसटी ऑफिसर के पास ऑफिस में और अपना जीएसटी सर्टिफिकेट लेना. ठीक है. उसको जीएसटी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा अपना खुद का, एजेंट बी को. ये जो अपना एजेंट है ए है, उसके ऊपर कोई लायबिलिटी ही नहीं है टू गो टू जीएसटी ऑफिस और टेक एनी सर्टिफिकेट फॉर हिमसेल्फ. तो उसके अकाउंट में अपन 2,20,500 ही ट्रांसफर करेंगे. और ये जो लायबिलिटी है जीएसटी की, दैट इज 54,000 जीएसटी जो ईएक्सपी ने रिकवर किया गोदरेज से. ये ईएक्सपी जाके गोदरेज, क्योंकि ईएक्सपी इज अ जीएसटी रजिस्टर्ड एजेंट. ठीक है. ईएक्सपी जाके ये सारी फाइलिंग करेगा 54,000 की टू जीएसटी ऑफिसर. और एजेंट ए के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है टू डू एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी. बट एजेंट बी, क्योंकि एजेंट बी को मिलता है 4,500, दैट इज द एडिशनल शेयर ऑफ जीएसटी बिकॉज ही इज अ जीएसटी रजिस्टर्ड ऑफिस. तो यहाँ पर क्या हुआ, सिंपल चीज है. ईएक्सपी ने क्या किया, अपना इनवॉइस रेज किया किसको, गोदरेज को, है ना. सेम वे ये तो अपना एजेंट बी है, एजेंट बी भी ईएक्सपी को अपना इनवॉइस रेज करेगा बिकॉज फॉर एनी एजेंट हु इज जीएसटी रजिस्टर्ड he can get paid based on invoice only. तो जैसे ही एजेंट बी अपना इनवॉइस रेज करता है ईएक्सपी के ऊपर,
उसको 261 मिल जाएगा, और EXP भी अपना कंप्लायंस करेगा, दैट इज ऑफ पेमेंट ऑफ GST, एंड एजेंट भी अपना कंप्लायंस करेगा इन टर्म्स ऑफ पेमेंट ऑफ GST. So at the end of the financial year, you're trying to say कि अगर एजेंट ए का रेवेन्यू ब्रैकेट GST एलिजिबिलिटी के नीचे आता है, तो वो जो GST जो कलेक्ट हुआ है क्लाइंट से और एनी डेवलपर, तो वो that will be reimbursed to the agent. Yes, if he is a GST registered agent. मतलब इस केस में आप देख रहे हो एजेंट बी का मैंने यहाँ चेंज किया है, उसका 25 लाख था, 24-25 में आके 15 लाख हो गया, तो भी उसको, क्योंकि वो GST रजिस्टर्ड एजेंट है, इसकी वजह से उसको तो GST की कंप्लायंसेस करनी पड़ेगी. Okay, I still have some confusion. Maybe I'll connect with you one-on-one, or maybe I'll check with. Okay. नहीं, please, I would एक appreciate. मिनट, मैं आपको यहाँ पे ना सिंप्लीफाई कर देता हूँ व्हाट मानसी इज सेइंग. मानसी इज टॉकिंग अबाउट टैक्सेस लैंग्वेज. सो दोनों ही केस में GST एप्लीकेबल होगा. एक केस में क्या है, अगर आपके पास 20 लाख तक की इनकम है, आपके पास GST नंबर नहीं है, तो आपके बिहाफ पे EXP GST जमा करा देती है. अगर आपके पास GST है और लेट से 20 लाख में से 2.5 लाख प्लस GST EXP, 2.5 लाख का GST EXP जमा कर देगी. ठीक है, मैं खाली एग्जांपल दे रहा हूँ आपको. 25% मतलब 2.5 लाख रुपए, सॉरी 25% हो गया 20 लाख का, 5 लाख रुपए. ठीक है, तो 5 लाख प्लस GST EXP के पास जाएगा, तो जो GST की 5 लाख की लायबिलिटी है वो EXP पे करेगी, और बाकी का अगर आप GST रजिस्टर हो 15 लाख प्लस GST आपके नाम पे ट्रांसफर हो जाता है. आपको भी GST भरना पड़ता है जो आपकी इनकम हुई है, अगर आपका GST का बेनिफिट नहीं ले रहे हो. तो इट इज़ वेरी सिंपल. GST दोनों, अगर आप GST रजिस्टर्ड हो तो कुछ आपके जो CAs होते हैं, आपके बेसिस ऑन योर GST स्पेंड, वो थोड़ा सा आपको इनपुट दिला देते हैं. इसीलिए GST की रिटर्न फाइल होती है ऑन अ मंथली. सो जो भी टैक्स कंसल्टेंट आप हायर करते हो, तो ही विल ट्राई टू सेव अ लिटिल बिट ऑन GST, and that is always advisable that if your income is 20 lakh and above, you should take a benefit, get yourself registered under GST. and बहुत सारे expenses आप बिजनेस में करते हो, जैसे कि आपने कोई लेट्स से कि कोई कंसल्टेंट की फी पे करी, राइट, फॉर 99 एकड़ का आपने अलग से पैकेज लिया, उस पर आपने GST दिया, तो जो अमाउंट आपने GST में 99 एकड़ को पे किया है, वो उसमें सेटल ऑफ हो जाता है. ठीक है, वो टैक्स कंसल्टेंट करता है और वो कोशिश करता है जहाँ पे GST का इनपुट मिल जाए, वो GST का अमाउंट एज अ कंसल्टेंट आपके पास बच जाए. क्लियर है यहाँ पे? वो तो सर इनपुट बेसिकली, सॉरी, करेक्ट, वो तो इनपुट क्रेडिट में आएगा. वो इनपुट क्रेडिट में आएगा, करेक्ट. तो इसीलिए वो टैक्स की फाइलिंग होती है. बट दोनों ही केस में ऐसा नहीं है कि हम क्लाइंट को GST का बिल नहीं रेज करेंगे. GST को जितने ट्रांजेक्शन की वैल्यू है उसी पे बिल रेज होता है, और टैक्स लाइबिलिटी दोनों ही केस में है, चाहे EXP भरे चाहे इंडिविजुअल एजेंट भरे, GST तो भरना ही पड़ेगा. दिस इज व्हाट इट इज. ओके, है ना? तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है इसमें. आई थिंक ये बड़ा सिंपल सा है कि GST तो हमने देना ही. डू वी हैव अ GST नंबर एज पर प्रोप्राइटर नेम ऑफ कंपनी, नेम एज पर द शॉप एक्ट, और नीड टू बी अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, हाउ टू रेज बिल टू EXP व्हेन ही रजिस्टर्ड एज एन इंडिविजुअल नेम. सो इसका बड़ा सिंपल सा है. अगर आप एक GST रजिस्टर्ड आपकी कोई फर्म है, तो EXP आपको अलाउ करता है कि वो फर्म में आप डायरेक्टर होने चाहिए या फिर आप प्रोप्राइटरशिप ओनर होने चाहिए, तभी आप उसमें GST का इनपुट ले पाएंगे. उसको एज अ कंपनी आप EXP में ऑनबोर्ड करा सकते हैं, और फिर जब बिल रेज करोगे तो उस कंपनी के नाम पे रेज करोगे. दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप GST अपने इंडिविजुअल नाम पे ले लें, एंड देन यू कैन आल्सो टेक द इनपुट ऑफ GST. Rang, I have a quick question. See, because in India, I mean, GST is a very, very confusing concept. So with is it necessarily that you have to earn up till 20 lakhs to just get the GST, or anyone can? No, it is not Anyone can take compulsory. the GST. Yeah, anyone can take. लेकिन अगर आप 20 लाख इन एनी फाइनेंशियल ईयर, तो आपके लिए कंपलसरी हो जाता है. Okay, then it's compulsory. Okay. Yeah. Because I think benefits of getting a GST is a lot in the line of business. Yes, I'll tell you how. Input tax credit जिसके बात करी, और अदर एक एजेंट ने भी बात करी, उसका बेनिफिट क्या होता है. अभी यहाँ पर हमने 40 का GST आउटपुट टैक्स, ये इतना हमको पे आया है. ठीक है, यहाँ पे 40 है. जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, आपने एक सालाना में इनकम कमाई, एक एजेंट ए ने, एजेंट बी ने इनकम कमाई अराउंड 45 लाख रुपीस. ठीक है, उसमें उन्होंने GST कमाया, GST आउटपुट टैक्स इतना उनको गवर्नमेंट को पे करना है, दैट इज 18% के हिसाब से, दैट इज 8,10,000. ठीक है, तो इतना पेमेंट एजेंट को करना है, गवर्नमेंट को, एजेंट टू पे GST. नाउ व्हाट हैपेंस इज, जब एजेंट ये 45 लाख की, कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि 45 लाख अपने आप उसके अकाउंट में आ गए. ठीक है, वो क्या करे, वो पेट्रोल भरेगा. ठीक है, वो क्या करेगा,
वो रेंट, वो लंच या डिनर पे लेके जाएगा, फूड एक्सपेंसेस करेगा, ही विल बी ट्रैवलिंग, ही विल बी ऑर्गेनाइजिंग सेमिनार्स एंड मल्टीपल अदर एक्सपेंसेस विच विल बी रिक्वायर्ड, ओके, जिसके अंदर वो एक टैक्स कंपोनेंट अपने साथ में, दैट इज say 50,000 in a, these are monthly, I'm talking about monthly income, हर मंथ में ये होके, एनुअली तो होगा ही, एनुअल इट कैन बी एनी अमाउंट, पर हर मंथ में जो ये इनकम, ओके, फूड एक्सपेंसेस पे 10,000 आया, इस पे आया 15,000, सेमिनार्स और उस पे आया 80,000, तो ये उसको जीएसटी इनपुट टैक्स में, ठीक है। तो एजेंट क्या करेगा, इंस्टेड ऑफ फुल्ली 10,000, what will the agent do? Agent will do a GST return, okay, that is GSTR 3 and GSTR 3B, जिसके बेसिस पे अभी उसको गवर्नमेंट को सिर्फ पे करना है 6,55,000, ठीक है। सो दिस इज वेयर देयर इज अ कैश फ्लो बेनिफिट, तो उसने ऑलरेडी पे कर दिया है इन द फॉर्म ऑफ पेट्रोल, फूड, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, जिसमें उससे जीएसटी भरा हुआ है, तो इतना बेनिफिट एजेंट को मिल जाता है। इस केस में क्या होगा, EXP ये बेनिफिट ले रही है, ये सेम बेनिफिट आप खुद ले सकते हो ऑन अ मंथली बेसिस, जहां पे आपको जीएसटी इनपुट टैक्स, मतलब जो पेमेंट आपने खुद ने करी है उसका बेनिफिट आप माइनस करके आपको पेमेंट आई, जीएसटी पेमेंट टू गवर्नमेंट। So there are multiple benefits of having a GST license. That is, you can claim, अगर आपके expenses in business and profession, आप डेफिनेटली जीएसटी, आपको जीएसटी का ये लेना ही चाहिए, ताकि आपका कैश फ्लो, अभी आपका कैश फ्लो होता 810 से, जो जीएसटी आपके बिहाफ पे करता EXP, वहाँ पे आपका कैश फ्लो होगा 655 ओनली, जो आपको पे, ठीक है ना। सो गाइस, मेरा ना यहाँ पे एक सजेशन है, बिकॉज देखिए ऑब्वियसली इट इज लाइक जिसका राइट, सो आई डोंट वांट लाइक बीइंग अ रियल्टर, it's always advisable that you can hire a tax consultant to manage your GST, your TDS. So when you form a company, when you form a proprietorship, I think the CAs can do all of this. GST की return annual file करने का they charge 2,000 rupees per month, 1,500 per month, or they can ask you the lump sum also, which includes your TDS, annual return filing, and etc. So best thing in my opinion is like what you should do, you should hire a consultant who can do your tax return. Any which ways आप अपनी अगर income tax किसी CA से भरवाते हैं तो he must be charging 3,000, 5,000 rupees. But in your case of the company, they charge anywhere from 25,000 to 60,000 rupees, a lakh rupees, depending on the return, the quantum of business, the quantum of work. So it is always advisable. Being a realtor, I would just wanted to share, because see, Mansi has a huge knowledge because she's coming from that background. She's heading the whole financial things. But in my opinion, what you should understand and concerned about that, instead of thinking of saying कि GST हम ऐसे बचा सकते हैं, definitely that's a possibility, right? But it's better that you should hire a tax consultant and tax planning. This is how the CAs and everyone is perfect for these notes. तो अगर 20,000 रुपये आप खर्च करके, and if he's saving 50, 60, 70,000 or 1 lakh rupees in a year, so I think it's a no-brainer that by spending 20,000 rupees, I am saving almost 70-80% of my income. So my suggestion to each one of you, those who are earning 20 lakh rupees से above, ठीक है, तो you should have definitely GST registered. It's a compulsion. Those who are planning to reach to that target, you can also apply GST number. GST आने में टाइम लगता है. आप एज अ इंडिविजुअल भी GST ले सकते हैं, आप एज अ प्रोप्राइटरशिप फर्म भी GST ले सकते हैं, आप एज अ कंपनी प्राइवेट लिमिटेड भी GST ले सकते हैं. वो हर तरीके से पॉसिबल है. You need to speak to the CA, right, for the same. So today's session is just to tell you about what are the benefits of having a GST, what are the applicability of GST, what is the applicability of TDS. And I know Mansi has a huge knowledge on this, and she can talk maybe a couple of hours on the same and explain all the questions. But in my opinion, I think the best way is hiring a tax consultant, because there are hundreds and thousands of things. It is in itself, it's a profession. जैसे आप realtor हो, इसी तरीके से CAs, CPAs, they are into their professions. So my advice to you guys, please, you can have one person, a good CA, who can file your returns, GST returns, tax returns, anything you required in terms of taxation. I think that would be better. So Mansi, I think we can proceed. And guys, just for everyone's knowledge and understanding, what I have done,
I have actually also created a GPT for the taxation, right, for India. So this is a chat GPT which we have created using a different tools, different sources. So I'm going to share the link in the chat, and this is kind of a thing, so you can save it in your what do you call, you can save it in your browser. So any questions related to tax, capital gains, TDS, GST, you can ask, and you can ask the chat GPT also with example. So then it will create an example also for you. Mansi, you can move to the next slide. Yeah, sure. Yeah. Now we are done with GST, so let's throw a bit of light on what are the TDS consideration for non-resident Indians. Now we are what are EXP? What is EXP? It's a global brokerage. का काम खाली इंडिया को सर्व करना नहीं है, हम वर्ल्ड की 27 कर देते हैं, ठीक है। तो ये 27 कंट्री में जो अलग अलग इंडिविजुअल्स रह रहे हैं, अगर हम इनको सर्विस कर रहे हैं तो उसका टीडीएस पे क्या इम्पैक्ट आता है अगर वो बाइंग और सेलिंग इन इंडिया। फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग इज कि कोई भी बायर जब किसी भी एनआरआई को पेमेंट करेगा वो मिनिमम 20% टीडीएस काटेगा अगर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, मतलब वो प्रॉपर्टी जिस सेलर के पास है वो 2 साल से ज्यादा होगी तो उसको 20%। लेकिन अगर वो प्रॉपर्टी वो सेलर के पास लेस देन 2 इयर्स के लिए होगी तो वो 30% के ब्रैकेट में आएगा। सो दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कंप्लीटली ऑन द बायर कि आपका जो बायर आपका कस्टमर है उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी जैसे ही उसको पैसे देने हैं कि उसको 20% या 30% कैपिटल गेन टैक्स काटना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज अ टीडीएस रिक्वायरमेंट। इसमें टीडीएस में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल डूइंग ट्रांजैक्शंस, बिकॉज ये ईएक्सपी भी फेस कर चुका है कि अगर सामने वाले ने टीडीएस नहीं भरा और अगर वो ट्रेसेबल नहीं है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर के ऊपर आ जाती है। इसीलिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल ट्रांसफरिंग एनी मनी टू द सेकेंड पार्टी। तो आप एज ए रियल एस्टेट एजेंट, क्योंकि आप उसको ब्रोकर कर रहे हैं ट्रांजैक्शन, आपके पास ये नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि आप अपने बायर और सेलर को राइटली एडवाइस करें कि भैया अगर आपका प्रॉपर्टी एक पर्टिकुलर ईयर से उस पर 20 या 30% का टैक्स लग रहा है तो प्लीज अपने कंप्लायंसेस फॉलो करिए। वाइल ब्रोकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बट इफ यू वांट टू एक्सेल इन द सर्विस दैट यू प्रोवाइड, प्लीज इंश्योर दैट आपके दोनों बायर और सेलर सारी कंप्लायंसेस करें, क्योंकि अगर कुछ हुआ तो यू आर द ओनली मिडिल मैन इन बिटवीन हु इज गोइंग टू हेल्प दीज टू पीपल, ठीक है। एनआरआईज जो है वो एग्जेम्प्ट भी कर सकते हैं इस कैपिटल गेन को, मगर कैपिटल गेन को एग्जेम्प्ट करने के 2 ही तरीके हैं। एक तरीका है या तो वो नई प्रॉपर्टी ले ले, ठीक है, नई प्रॉपर्टी लेने तक वो एक एनआरआई कैपिटल गेन टैक्स अकाउंट होगा, किसी भी पीएसयू बैंक में पार्क कर सकते हैं, मतलब आप प्रॉपर्टी लेके 2 साल तक आप ये एक कैपिटल गेन टैक्स अकाउंट में रख सकते हैं। या तो 54EC के अंदर सर्टेन लिस्ट ऑफ बॉन्ड्स आते हैं, उसके अंदर एक एनआरआई पेमेंट अपना कैपिटल गेन बचाने के लिए ट्रांसफर कर सकता है। मतलब उसने प्रॉपर्टी बेची 50 लाख की और वो 50 के 50 लाख वो कहाँ ट्रांसफर कर देगा, एक 54EC के बॉन्ड खरीद लेगा जिसके ऊपर भी दैट्स इनकम जनरेटिंग बॉन्ड, मतलब प्रॉपर्टी बेच के बॉन्ड्स खरीदेगा या तो नई प्रॉपर्टी खरीदेगा तो उसको कैपिटल गेन टैक्स भरना। अदरवाइज TDS of 20% or 30% डिपेंडिंग ऑन द पीरियड ऑफ टाइम जब तक ये प्रॉपर्टी होल्ड की जाती है इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। दिस आई एम नॉट गोइंग मच इन डिटेल बिकॉज दिस इज प्योरली इफ यू आर सर्विंग अ NRI, okay? I just have a question, Mansi, on this. Sure. It has to be the entire amount of 54 lakhs or? Yes, no, entire amount. It has to be the entire. So मैं आपको इसमें बता देता हूँ गाइज, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो अभी आपने पूछा ना। So जो भी आपकी ट्रांजेक्शन वैल्यू होगी, ठीक है, उस पे जो एप्लीकेबल TDS होगा वो होता है NRI के केस में 20%, राइट, एंड प्लस इसके ऊपर सेस होता है, एजुकेशन सेस होता है, फूड एंड सर्विसेज टैक्स होता है। सो ये कहीं अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आता है अराउंड 29%, 28.52 समथिंग, राइट। सो इस केस में एक प्रोविजन दिया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दैट यू कैन हायर अ टैक्स कंसल्टेंट इफ यू आर एन NRI, right, and if you are selling a property, and then you can apply 23.8% correct, but अगर आप high ticket पे जाते हो तो this can go up to 29% also. And just to give you an idea, if you are already in a highest bracket, it can also go in the case of like अगर आपकी इंडिया में अदर इनकम से लेट्स से आप ऑलरेडी 2 करोड़ से ऊपर इनकम आ रही है आपके पास इंडिया में,
तो उस केस में आपका जो टैक्स रेट आता है दैट इज़ विद सेस इट इज़ दी हाईएस्ट आ जाता है, 40% से ऊपर भी चला जाता है। सो मोस्टली एनआरआई के केस में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं यहाँ पे। मैं आपको बस एक छोटा सा सिंपल दे रहा हूँ, हर इंडिविजुअल की अर्निंग के ऊपर डिपेंड करता है, बट एक जो फिक्स टैक्स रेट है वो 20% है। But coming back to this provision, what is given to the NRIs, they can apply for a lower income tax certificate, right? So they can put an application basis on their, request of the property that this is an ancestral property, or they have bought it 7 years back. That was that time, dollar rate was, let's say, 60 rupees to a dollar, but right now the dollar rate is 84 rupees a dollar, right? So on that basis of reasoning, CAs, chartered accountants, they are able to get a lower income tax certificate. So being a realtor, it is very, very important that you should educate your NRI client that this is going to be the tax applicability and this is going to be get deducted. So majority of the time, 99% of the time, agents बात ही नहीं करते हैं NRIs के साथ में। और मैं आपको बता रहा हूँ, NRI चिढ़ जाते हैं इस चीज़ से जब उनको लास्ट टाइम पे पता चलता है, जब ट्रांजैक्शन होती है कि आपका 23.92% टैक्स कटेगा। तो लेट्स से कि द ट्रांजैक्शन हैज़ डन एट 1 करोड़ रुपीज़, राइट? अगर 23.92% इन TDS में कटता है, हालांकि वो टैक्स रिटर्न करके उसको वापस क्लेम कर सकते हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, बट अगेन क्वेश्चन इज कि जब वो ट्रांजैक्शन होती है वो कैंसिल हो जाती है उस टाइम पे, क्योंकि आपके सीधे सीधे 23 लाख 24 लाख रुपए कट जाते हैं, या 25 लाख, जो भी आपका टैक्स रेट रहता है, ठीक है? So 23.92% is standard. It can go up to, as I said, 34% also. It can go up to 40% also, depending on the seller's income in India, right? So there are so many factors to that. That is, again, as I said, always hire a consultant. Always recommend that NRI client to have a consultation with a CA so that he can guide him in all the taxation part of it. But this is I am saying for everyone's benefit. Being a realtor, being a professional, this is very, very important to understand that it is buyer obligation to deduct the TDS. जब भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं, अगर आप बायर सेलर रिप्रेजेंट कर रहे हो या बायर रिप्रेजेंट कर रहे हो, it is your advice, it is your responsibility being a realtor that you should ask them to deduct the TDS, right, whenever the transaction happen. So I hope this is able to give you a little idea about it. Like Mansi said, exemptions are there, right? There are ways of saving this. You can, being an advisor, always say, देखो आप लॉयर मत बनो, आप टैक्स कंसल्टेंट मत बनो, आप रियल्टर रहो, ठीक है? बाहर कंट्रीज में तो आप बोल भी नहीं सकते हो, नॉट इवन टॉक अबाउट इट, राइट? You should be like aware about it, but you can not advise your client on taxation. You can not advise your client on legal due diligence of the paper. It is literally a ban, right? In US, in Europe market, you can just talk to your client that you should hire a lawyer or you should consult with, समझ रहे हो आप? वहाँ पे आप बात ही नहीं कर सकते हो। अगर क्लाइंट ने बोल दिया कि मेरे रियल्टर ने ये मेरे को गाइड करा है, तो लिटरली इट्स आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज बीइंग अ रियल्टर यू आर authorized for the property related advice. You are not authorized for a tax related advice or a legal related advice. So I'm telling you, they don't even talk about it. They always say कि ठीक है, आप अपने mortgage broker से बात करो, अपने lawyer से बात करो, अपने attorney से बात करो, अपने tax consultant से बात करो. But in India, being a realtor, it is our kind of thing that we should be aware and we should advise our client the best. अगर कहीं पे लॉयर चाहिए तो आप उनको बोलो सर 5-10 हज़ार रुपये लगेंगे, आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, प्लीज़ आप एक टैक्स कंसल्टेंट और एक अपना लॉयर हायर करो, सो दैट एवरीथिंग शुड बी advised properly to you and you will not fail any kind of fault in future. Back to you. But Shashank, in that case, there are plenty of lawyers or chartered accountants who advise for the real estate agent as well. All right. So it may happen that he may pinch that client and give it to somebody else. Don't you think so? देखो हो सकता है, but that's why I'm always say ना कि आपके पास एक CA होना चाहिए, लॉयर होना चाहिए. मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ, if you really wanted to succeed in your life, being a realtor, you have a trusted architect, you have a trusted lawyer, you have a trusted interior designer, and you have a trusted tax consultant. So what will happen? They are not going to bypass you, right? एंड जब भी आप वो क्लाइंट देते हो, आप उनको दे विल गिव यू रेफरल ऑल्सो. इट्स अ अर्निंग पोटेंशियल, आप उसको पैसे कमवा रहे हो. तो जैसे आपने बोला ना कि वो टैक्स कंसल्टेंट किसी और को क्लाइंट ना दे दे या कुछ कमी ना निकाल दे. सर देखो, हमें लगता बुरा है कई बार. जैसे मैं आपको अपना एक एग्जांपल शेयर करता हूँ रियल टाइम में, ठीक है?
एक ट्रांजैक्शन हम लोग कर रहे थे, वहाँ पे जो लॉयर थे, ठीक है, लॉयर भी हमने रिकमेंड किया था, बट दैट लॉयर हैज फाउंड दैट दिस ट्रांजैक्शन इज नॉट राइट इन द फेवर ऑफ द क्लाइंट, ठीक है। इट्स अ फार्म हाउस ट्रेन, फार्म हाउस के पेपर्स बहुत ही खराब होते हैं, एंड खेतान एंड कंपनी वाज द लॉयर, आई एम जस्ट टेलिंग यू, and from their expertise they said दूंगा, but I will highlight these things, and being a again represented by me, and it's a big transaction. I remember it was 42 crore rupees का transaction था, but since they are practicing and they said कि client is paying us 1 लाख रुपए की फीस थी उनकी, उस केस में बोला कि सर इस पेपर में हम we can not let go, और मतलब मेरी एडवाइस ये है कि आप ये प्रॉपर्टी मत खरीदो, ठीक है, बिकॉज देयर इज अ ग्रे एरिया इन दिस एंड वी कैन नॉट टेक दिस लाइबिलिटी। अगर आपको खरीदनी है, इट इज योर चॉइस, still it's your choice, but we as a lawyer will not advise you since you have hired us, you have paid us. अब उस टाइम पे being a realtor, क्योंकि मैंने ही लॉयर को एंगेज कराया था और मैंने ही उनको बताया था, बट आप सोचो मेरा तो खाली कमीशन था, बट उस आदमी के तो 42 करोड़ रुपीस लगने वाले थे उस प्रॉपर्टी पे। तो कई बार क्या होता है ना, आपको एज अ प्रोफेशनल समझना भी पड़ता है कि अगर वो कुछ कह रहे हैं तो उसका कोई रीजन होगा। फिर मैंने लॉयर से बात करी, वहाँ पे पार्टनर थे, सीनियर पार्टनर थे खेतान एंड कंपनी में, उन्होंने मेरे को बोला कि शशांक देखो, अगर कल को पड़ोसी ने उठ के आ गया, यहाँ पे कोई भी लीगली डिफाइंड नहीं है कि कितना एरिया उस प्रॉपर्टी के अंदर इस प्रेमाइसिस में है, ठीक है, तो इस कारण से मैं इसको एडवाइज नहीं करूंगा। दो वहां पे फिजिकल बाउंड्री है, पोजेशन सेलर के पास है, बट पेपर्स में वो नहीं है लिखा हुआ, तो वहां पे उन्होंने क्लियरली लिखा था और वो ट्रांजेक्शन नहीं हुई थी, ठीक है। बट फायदा क्या हुआ, उसी बायर ने कुछ और खरीदा मेरे थ्रू, जहां पे कि सब कुछ साफ सुथरा था, और वही लॉयर उन्होंने एंगेज करे, दोबारा से फी करी। बट आप सोचो कि आपको वो 42 ज्यादा इंपॉर्टेंट थे या वो क्लाइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ पे आपकी बात आती है एज अ प्रोफेशनल और नॉट प्रोफेशनल। कोई और ब्रो जी ये तो लॉयर पागल बना रहा है, आप ड्रिल कर लो। तो अगर आपको कभी भी समझना है, एज अ प्रोफेशनली एडवाइस करना है, और आप खुद सोचोगे ऐसा चीट करे कोई एजेंट, तो आपको कैसा फील होगा, है ना। आई एम श्योर, एंड दिस इज व्हाई रियल एस्टेट इज अ ग्रे एरिया, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द टाइम वी चूज मनी ओवर एथिक्स, वी चूज मनी ओवर राइट थिंग्स, ठीक है ना। और वो पैसे वैसे दे के सब काम करा लेते हैं, लफड़े झगड़े की प्रॉपर्टी खरीदवा देते हैं, एक भाई को पता भी नहीं चलता, दूसरा भाई प्रॉपर्टी बेच देता है, नकली पेपर बना लेते हैं। सो ये सारी कहानियां बहुत सच हैं, और ये इसी वजह से होती हैं क्योंकि वहाँ पे पर्सनल इंटरेस्ट, एज अ ब्रोकर, एज अ इंडिविजुअल, एज अ सेलर। तो being a realtor, being a professional, I think you guys need to understand and take a call on that. I hope this example, give you some idea. Yeah. Thank you so much. Thanks a lot. Thanks, Shashank, for the amazing insight. Truly value adding. So let's move to the next slide. That is GST consideration for real estate lands. ये हम already covered कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको GST उसके ऊपर apart from land, GST on brokerage service जो GST आपको एज अ EXP एजेंट, एज अ ब्रोकर पे करना रहेगा, that is 18%, और TDS of 2% is applicable for all the GST brokerage payments. So utilizing GST state, okay. तो what is G, that is input tax credit, ये हम लोगों ने एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में आपको बताया। दैट इज अगर आपकी इनकम होती है 810 और उसके ऊपर जो आपका 155 का आप सेट ऑफ ले सकते हो, और इसमें जहाँ पर आप जितना भी एज अ बिजनेस एंड प्रोफेशन एक्सपेंसेस का भी इनपुट टैक्स आपको रिकवर होता है, दैट इज आप पेमेंट करते हैं और GST पे करते हैं, उसका आपको बेनिफिट मिलता है। एंड एज शशांक राइटली सेड, यू शुड हैव हायर्ड अ CA, अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो आपको हेल्प कर सकता है और बिल्स को। बट हाँ, एज अ बिजनेस एंड प्रोफेशन एजेंट प्लीज इंश्योर करिए कि आप अपने सारे बिल्स, आप अपना GST सर्टिफिकेट अपने पास हमेशा रखें, ताकि आप कोई भी एक्सपेंस का GST सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं, बिकॉज अभी GST कम्प्लीटली ऑनलाइन हो चुका है। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर से फॉर एग्जाम्पल आप होटल में जाते हैं, एक सेमिनार बुकिंग करते हैं 50 और आपका खर्चा आता है, तो अगर आप वो इनवॉइस विदाउट गिविंग योर GST सर्टिफिकेट ले लेते हैं तो आपको GST का बेनिफिट, अगर आपका क्यों GST बेनिफिट नहीं मिला है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड द ओनस इज ऑन यू एज द इंडिविजुअल हु वांट्स टू क्लेम द बेनिफिट ऑफ GST, के से आप कोई बिल पे कर रहे हो या आप कोई होटल बुकिंग कर रहे हो या फ्लाइट बुकिंग कर रहे हो, और ये फ्लाइट बुकिंग के आपके बेनिफिट जा रहे हैं आपको एज ए इंडिविजुअल बिजनेस एंड प्रोफेशन होल्डर। प्लीज़ अपना GST नंबर, हर बार कोई भी फ्लाइट में भी आपको दिखेगा GST नंबर रिफ्लेक्ट कर रहा है, कोई भी होटल पेमेंट में भी आपको दिखेगा आपका GST नंबर रिफ्लेक्ट कर रहा है। किसी भी होटल वाले के पास ऑप्शन नहीं है बट GST लेना, तो अपना GST हमेशा उनको दिखाइए, आपका सर्टिफिकेट दीजिए, आपका GST के हिसाब से जो नाम है, से फॉर एग्जांपल आप इंडिविजुअल हो वशिष्ठ,
लेकिन अगर आप एक कंपनी है दैट इज एबीसी लिमिटेड कंपनी, तो इनवॉइस एबीसी लिमिटेड कंपनी के नाम आएगा और नीचे आपका जीएसटी नंबर मेंशन होना चाहिए। अगर वो जीएसटी नंबर बिल बनाने में भी टैक्स इनवॉइस बनाने के टाइम पे अगर नहीं मेंशन करते तो उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको नहीं। सो द ओनस इज ऑन यू एज अ बिजनेस पर्सन, एज अ बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन, कि आप प्रूव करें कि आपने जीएसटी पे किया है। और वो आप कब प्रूव कर सकते हैं? जब आप अपना जीएसटी सर्टिफिकेट उनको दे और आपका जो इनवॉइस जनरेट होता है वो इनवॉइस आपके नाम पे, मतलब आपकी जीएसटी रजिस्टर्ड नेम और आपका जीएसटी नंबर वो इनवॉइस पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। इज दिस क्लियर? करेक्ट। एंड मानसी, जस्ट टू ऐड हियर गाइस, सब कुछ ऑनलाइन है। द मोमेंट जीएसटी आपका टैक्स इनवॉइस पे चढ़ता है वो जीएसटी हो जाता है। So everything is very transparent and linked right now, but provided, as I said again, like again I'm repeating, या तो आप खुद ये सारी हैसल ले लो या बेटर ये है कि टैक्स कंसल्टेंट हायर करो। ही विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। मंथली जीएसटी की रिटर्न फाइल करो। आप अगर कंपनी चला रहे हो तो देयर हैज टू बी some process you need to adopt, and in a long run I am telling you, you ended up saving a lot of money, right? So there's always a saying that poor people pay tax and rich people save, right, or save taxes. So please understand this because they hire the right set of people, right set of this thing. And यहीं पे मैं आपको बताता हूँ एक बहुत ही बीइंग अ रियल्टर के पर्सपेक्टिव से, जब भी आप क्लाइंट से बात करते हो ना, जीएसटी क्यों देना है, ये क्यों देना है, तो आप बोलो सर मैं रियल्टर हूँ, ठीक है, आई कैन एडवाइस यू एंड सेव यू अ लॉट ऑफ थिंग्स इफ you just understand and listen to my experience, listen to my support and listen to my services, ठीक है। तो बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं जिनको ये चीज़ें नहीं पता होती हैं, जब बट बीइंग अ रियल्टर जब आप जाते हो उनके पास, आप उनको सारे वेज बताते हो सकता है उनको पता भी हो, बट जब आप उनको रिमाइंड दिखाते हो तो देन यू लुक एज अ प्रोफेशनल, लुक लाइक अ प्रोफेशनल कि अच्छा ठीक है भाई, ये बंदे को एक्सपीरियंस है, इसने काम किया हुआ है, ठीक है। तो प्लीज अंडरस्टैंड एंड डोंट लूज करते रहो। नेक्स्ट मानसी, आई थिंक लास्ट वीक आई ऑन मल्टी स्टेट रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन। आई थिंक आपने एक्सप्लेन कर ही दिया है नोएडा हाँ, मैंने वाला स्टार्टिंग में थोड़ा एक्सप्लेन कर ही दिया है नोएडा और इसमें, बट यहाँ पर एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि ये स्पेसिफिकली तब एप्लीकेबल होगा जब आपका प्रॉपर्टी से फॉर एग्जांपल किसी और स्टेट में है और आप उसे किसी और स्टेट में खर्चा है। से फॉर एग्जांपल एक मुंबई का प्रॉपर्टी ओनर, मुंबई इंडिविजुअल और मुंबई कंपनी इज बाइंग अ प्रॉपर्टी इन दिल्ली, तब मल्टी स्टेट जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा और तब इंस्टेड ऑफ एसजीएसटी और सीजीएसटी आपका आईजीएसटी पिक्चर में आता है। सो दैट इज द ओनली डिफरेंस। वाइल दीज आर प्योर नेम क्रोनोलॉजी, अगर आपके पास एक एडवाइजेबल और सूटेबल टैक्स एडवाइजर है, ये सारी चीजें अप्रोप्रिएटली मैनेज कर ले। तो मल्टी स्टेट जीएसटी इज नथिंग, इट इज अगेन द टैक्सेशन एप्लीकेबल डिपेंडिंग ऑन विच स्टेट। आपका रियल एस्टेट प्रॉपर्टी अगर किसी स्टेट में है विच इज डिफरेंट फ्रॉम द स्टेट वेयर यू बिलोंग टू, then this comes into picture. So GST again, to conclude the whole session, GST is a very important component for a country to run its economy. Real estate being one of the major contributor of GST, we would appreciate and ensure कि हम अपनी इनकम बढ़ाते जाए इन टर्म्स ऑफ। हाँ, आप सबको लगता होगा जीएसटी क्यों पे करें, ओके, लेट्स बी वेरी क्लियर। ये एक बहुत अमेजिंग क्वेश्चन शशांक ने भी रेज किया कि मैंने क्या करा है कि मैं ना ब्लैक और वाइट की ट्रांजैक्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। ये है ग्रे मार्केट की ट्रांजैक्शन, जब आप बोलते कि मैं क्यों 18, ठीक है, और आपने कमाया 1 करोड़ रुपया और 1 सेकंड, और ये है आपकी वाइट की इनकम ने कमाया 15 लाख रुपए, क्योंकि आपकी इनकम तो इतनी रही है कि नहीं, तो अब आपको जीएसटी नहीं पे करना है, नॉन जीएसटी। और ये है आपका जीएसटी वाला। अब यहाँ कमा तो आप दोनों ही इतना कमाना आपका दोनों ही साइड इतना ही पैसा है, ठीक है। ये आपने ग्रे मार्केट में ले ली, नॉर्मल उसमें ले ली, क्योंकि आप जीएसटी पे कर रहे हो, सारे कंप्लायंसेस फॉलो कर रहे हो, ठीक है। अब क्या होता है, इस इनकम को आप विद इन 7 years मिनिमम, ओके, डबल कर सकते हो। कैसे? दिस इज नथिंग बट अगर आप एफडी में तो 6 to 8% आपको, और आप इसको डबल कर 115 को आप 2 crores बना सकते हो। आप 7 years के अंदर सिर्फ इतनी इनकम को डबल कर। दिस इज द वर्स्ट कम सिनेरियो मैं आपको बता रही हूँ अगर आप एफडी में डालते हो, एंड दिस इज मैक्स फॉर अ नॉन जीएसटी एजेंट। तो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल कॉज
कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट भी करनी है आपके ट्रांजैक्शन से, आपको अपने आप को मल्टीप्लायर इफेक्ट एज एन इंडिविजुअल अर्निंग एजेंट, प्लीज डोंट शाई अवे फ्रॉम पेइंग योर टैक्सेस, बिकॉज अगर आपकी टैक्स पेड इनकम है आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो इन एलिजिबल मैनर। ये तो मैंने 6 to 8 years आपको कहा। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में जाते हो और अगर आप डिफरेंट सोर्सेज ऑफ अर्निंग इनकम में आप 8 to 30% तक की रिटर्न्स कमा सकते हैं इन वाइट, ठीक है। वाइल ये वाला आपका जो कैश है ये आप ही रहेगा और ये आपका कैश उस टाइम पर भी, तो आप क्लियरली एक डिफरेंस देख सकते हो कि आपकी दिस इज कंप्लीटली आउट ऑफ द बॉक्स। मानसी, एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड करूंगा, जैसे छोटा सा एग्जांपल देखो, तरीके बहुत हैं। अगर आप वाइट नहीं लेते हो तो फिर आप सोचते हो कैश कहाँ खपाना है, वो एक सबसे ज़्यादा सरदर्दी हो जाती है। एंड आई एम श्योर सो मेनी पीपल व्हाट दे डू, यू नो, वो प्रॉपर्टी में टैक्स का वो कमीशन लेते ही नहीं है, वो प्रॉपर्टी ले लेते हैं, कोई लैंड खरीद लेते हैं, एडजस्ट करा देते हैं। बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है, मतलब ट्रेडिशनली ये करते आ रहे हो, बट अगर यही करना है तो फिर EXP में क्यों आए हो? मेरा क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। We are a professional organization and we will definitely try and give you the best and right path, ठीक है। जो सही है उस पर हम बात, गलत करने के मतलब जो कहते हैं ना 1 लाख तरीके हैं, है ना। तो जितना हमारी करेंसी, अगर मैं बात करता हूँ, अगर हम बात कर रहे हैं आज हमें भाई लेट्स से 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए भाग रहे हैं, इंडिया भाग रहा है, ठीक है। आपको क्या लगता है इंडिया की 5 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं है? वो है। अगर ब्लैक मार्केट में जाओगे तो शायद उससे 3 गुना ज़्यादा होगी, है ना। 10 ट्रिलियन भी हो सकती है, 15 ट्रिलियन भी हो सकती है, बट वो अकाउंटेबल नहीं है। हम जो बात कर रहे हैं, बाहर की कंपनियां जो इन्वेस्ट कर रही हैं, जितने भी अच्छी कंपनीज हैं वो इंडिया में इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पे ग्रो हो रही है, लोग पैसा दे रहे हैं, टैक्स भर रहे हैं, बिकॉज डेवलपमेंट बुक्स पे ही आता है। आपको कई बैंक लोन लेगा, आपकी चाहे 2 करोड़ की इनकम हो, अगर बुक्स में खाली 2 लाख रुपए तो वो 2 लाख ही कंसीडर करेगा, वो 2 करोड़ कंसीडर ही नहीं। एंड दे विल नॉट यू नो गिव यू एलिजिबिलिटी ऑफ बाइंग अ परचेज ऑफ कार, परचेज अ यू नो व्हाट डू यू कॉल अ होम। सो आपको लग रहा होगा कि गवर्नमेंट हैज़ मेड यू नो अ काइंड ऑफ फ्री बी फॉर इंडियन पॉपुलेशन। उन्होंने बोल दिया कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। अब आप सोचो, हर इंडिविजुअल जो 3 लाख की नील की ITR भर रहा था, या 5 लाख की, 8 लाख की ITR भर रहा था, अब वो 12 लाख की भरेंगे। तो आप सोचो 12 लाख की ITR से इम्पैक्ट क्या होगा। उनको 12 लाख के हिसाब से उनकी एलिजिबिलिटी आएगी। दे हैव मोर कंजम्पशन कैपेसिटी, दे हैव अ मोर अप्रूवल ऑन बैंक लोन। अगर कोई बंदा हस्बैंड वाइफ है तो दैट मीन्स 24 लाख की ITR होगी उनकी। 24 लाख की ITR पे एक जो थंब रूल होता है, 5 मल्टीप्लाई कर दो, उनको 1 करोड़ रुपए तक का कोई भी बैंक हंस के लोन दे देगा। 1 करोड़ 20 लाख रुपए तक का घर खरीदने के लिए कोई भी बैंक लोन दे देगा, अगर किसी भी हाउस होल्ड की इनकम 24 लाख रुपए है तो मैं आपको एक बहुत बेयर मिनिमम एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आप सोचो प्रॉपर्टीज क्यों नहीं बिकेंगी? प्रॉपर्टी बिकेंगी। पहले क्या हो रहा था, उनकी जो एलिजिबिलिटी आ रही थी, क्योंकि वो 8 लाख की ITR फाइल कर रहे थे, उस केस में उनकी एलिजिबिलिटी ही 70-80 लाख की हस्बैंड वाइफ की। बट आज के टाइम में क्योंकि घर के रेट बढ़ गए हैं, क्योंकि चीज़ें महंगी हो गई हैं, इन्फ्लेशन हो गया है, तो आप ऐसे समझिए आज से 7 साल पहले जो वैल्यू 8 लाख रुपए की थी, आज वही वैल्यू आपकी। इसको आप ऐसे समझिए मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे। बट एज अ रियल्टर आप ये चीज़ जब क्लाइंट को बोलेंगे कि सर अब आप इस साल 12 लाख की ITR भरिए, हस्बैंड वाइफ जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स हैं उनको आप बोलिए कि भाई आपकी 24 लाख की ITR अगर है तो आपको मैं कोशिश करूंगा कि बैंक से 1 करोड़ रुपए तक का लोन दिला दूं। और ये प्रोसेस बड़ा सिंपल सा है कि वो 3 पैरामीटर्स पे चेक करते हैं कि आपकी स्पेंडिंग कितनी है, ठीक है, आपकी EMI, करंट EMI, अगर करंट EMI नहीं है तो वही कोई भी बैंक दे देगा। तो ये सब चीज़ें एज अ रियल्टर आपको पता होनी चाहिए। टैक्सेशन क्या क्या एप्लीकेबल है, जैसे GST की अभी हमने बात करी, आप एज अ रियल्टर एज अ ऑर्गेनाइजेशन बना के कहाँ कहाँ टैक्स बचा सकते हैं, तो यू नीड टू कंसल्ट अ CA so that you can make a wise decision. Similarly you should tell the clients also कि सर अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीदते हो तो 12% का आपका GST का एप्लीकेबिलिटी आती है ऑन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, राइट। द लैंड वैल्यू इज अगेन इट्स नॉट ऑन द GST। हमेशा अगर कंप्लीशन कोई प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हो जिसका CC आ चुका है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट है, उस पर GST एप्लीकेबल नहीं होता है। प्लीज़ ये चीज़ आप समझिएगा बीइंग अ रियल्टर। छोटे शहरों में Tier 2 Tier 3 में क्योंकि लोगों को पता नहीं होता है, एजेंट्स को पता नहीं होता है, डेवलपर रेरा रजिस्टर्ड नहीं होते, वो वैसी GST पेल देते हैं, ठीक है, 12% ऑन द टोटल वैल्यू। और मैं आपको रियल टाइम एग्जांपल बता रहा हूँ, मैंने लिटरली लिंक्डइन के अंदर देखा था, देयर वाज सम गाय इन समवेयर इन साउथ, ठीक है, उसने कोई प्रॉपर्टी खरीदी थी, द प्रॉपर्टी इज नॉट रेरा रजिस्टर्ड, इट इज नॉट लाइक कंप्लीशन। और जो डेवलपर था, छोटा डेवलपर था, आई एम नॉट सेइंग कि कोई बड़ा डेवलपर था, उसने उससे 48 लाख रुपए के ऊपर 12% GST लिया हुआ था। तो आप सोचो 48 लाख के ऊपर 12% GST कितना हो गया,
वो खाली उसको बिलिंग में दिखाया, उस पर कोई जीएसटी नंबर नहीं था, नहीं कुछ था। अब वो 12 लाख जो भी 12% जीएसटी गया वो बेसिकली उस वेंडर की जेब में गया। तो बीइंग अ रियल्टर, यू नो, यू शुड check these points, you should make sure that you know this should not be the case, and आपके साथ या आपके क्लाइंट के साथ कभी भी कोई चीट ना हो। So please keep these, you know, tax parameters, increase your knowledge, understand the concept, and then you can work. And जो मानसी ने बोला, definitely, and I think this is the only difference, आप क्लाइंट ढूंढते हो। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे 20-50 लाख जिन्होंने कैश में कमाए हैं, ठीक है, पर तब भी आप ऐसे लोगों को ढूंढते हो जो 50 लाख वाइट में कमा रहे हैं, वो आपके क्लाइंट्स हैं। अब वो आपके क्लाइंट्स क्यों हैं? क्योंकि उनकी बुक वैल्यू है, आपकी बुक वैल्यू नहीं है। सेम प्रॉपर्टी हो सकता है आप भी खराब जाओगे तो आप नहीं खरीद पाओगे। ये मैंने लिटरली देखा है ब्रोकर्स को स्ट्रगल करते हुए। एक एग्जांपल आपको मैं अभी बता देता हूँ, प्रेस्टीज आ रहा है गुड़गांव, नोएडा। हर ब्रोकर, मतलब जितने लोगों को मैं जानता हूँ, जितने लोग उस पर काम कर रहे हैं, एवरीवन कैन परचेज दैट प्रॉपर्टी, राइट, बट हार्डली एनीवन इज गोइंग टू परचेज दैट प्रॉपर्टी। बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि सारी पेमेंट वाइट में, उनको पता है अपॉर्चुनिटी अच्छी है, इन्वेस्टमेंट अच्छा है। अगर मैं 15 साल के 10 लाख, तो 5 साल के अंदर मेरी प्रॉपर्टी 1.5 करोड़ की खरीद रहा हूँ, वो 2-2.5 करोड़ की हो जाएगी। बट क्योंकि उनके पास वो 15 लाख ही नहीं है वाइट में, जो 15 लाख उन्होंने कमाए हैं वो कैश में कमाए हैं, तो वहाँ पे उनको स्ट्रगल करना पड़ता है। उन लोगों को वीज़ा नहीं मिलता। आपको पता होगा रियल एस्टेट में वीज़ा नहीं मिलता है, क्योंकि उनकी वाइट की बुक्स ही नहीं होती हैं। आप आते हैं कंपनी की इनफ्रंट रिटर्न, उनको रीज़न से वीज़ा मिल जाता है, नहीं तो बच्चों से मिलने नहीं जा पाते। आई नो सम रियल्टर्स जिनके बच्चे यूएस में पढ़ रहे हैं, यूके में पढ़ रहे हैं, 2-2 साल से घर नहीं आए हैं, एंड बीइंग अ रियल्टर उनका वीज़ा बार बार रिजेक्ट हो रहा है, क्योंकि उन्होंने क्या करा है, पैसा उनके पास कम नहीं है, पैसा उनके पास 2-5 करोड़ रुपए जो कहते हैं ना बोरी भर के है, बट कभी भी उन्होंने ट्रांजेक्शन्स नहीं दिखाई वाइट में। तो ये आपके लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स हैं। And I'm telling you from my experience, साल हो गए, and I'm proud of saying this, not even a single transaction I have received cash, and you should be also proud of it. So it's up to you, it's your business, but the right is always right, right? It might be a tough, it might be, you know, not easy, it might be, you know, take some time, but if you are doing right, you will feel satisfied. So please change that concept. Government is taking a lot of initiative. अब बीइंग अ रियल्टर हमें वो इनिशिएटिव लेने हैं, और अगर वही करते रहे जो पुराना चल रहा है, तो आपको वही 2-5 साल में एंड यू एंडेड अप लूजिंग एवरीथिंग। अपने मार्केट में जाके देख लो, आई एम श्योर 10 साल पहले जो रियल्टर था, टॉप का रियल्टर, वो आज दिखेगा भी नहीं। बहुत ही कम लोग हैं ऐसे जो बहुत ही ज़्यादा कामयाब हैं, और वो वही लोग होंगे जिनकी इंटीग्रिटी है, एथिक्स हैं, जिन्होंने एक सिस्टम बनाया है, जिन्होंने समझ लिया है कि आगे बढ़ना है तो हमें अच्छा काम करना पड़ेगा। सेम गोज विद द डेवलपर, सेम गोज विद द रियल्टर्स। So आपको, मतलब you guys are all smart enough, now you can choose the right path, और आप देख सकते हो ट्रेडिशनल तरीके से पैसा कमाना है या फिर मेरे को एक प्रोफेशनल बनना है और लॉन्ग टर्म मेरे को टिकना है। बट मानसी, ग्रेट इनसाइट यार, सॉरी मेरा एग्जांपल्स तो रियल टाइम ज़्यादा होते हैं। आई ऑलवेज बिलीव, you know, sharing the knowledge. Absolutely, Shashank. That's exactly what the agent-led trainings require. Absolutely. But you know, from the technical Mansi, I have a question. Yeah. If I may. Yeah, sure. It was regarding the input tax credit when we were discussing. I had a little query. See, sometimes what happens is that in the case of primary transactions, when the developer is paying the GST, they have the option of claiming it as a GST input credit while they file their own GSTs, right? Correct. So, but in case of secondary transactions, right? If I come across a client who, first of all, is hesitant to pay the GST, and there are many times that I've come across such transactions, and I know I will again be saying that okay, fine, it's either take it or leave it, but sometimes clients are totally hesitant to paying the GST, totally, whatever we say, whatever we argue, they say sir mera isme kuch nahi hai, theek hai na? So in that case, how can we convince the client that there is a way to claim this GST as input tax? They cannot claim. No, if they are a private client, they don't have a GST. वो claim नहीं, क्योंकि उनका बता देता हूँ। हाँ, बट मैं आपको ये बता देता हूँ, जब भी वो अपना कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे ना, तो दिस विल कम एज एक्सपेंस टू देम, इंक्लूडिंग द जीएसटी कॉस्ट। योर ब्रोकरेज, तो सर ब्रोकरेज आती है ना, ब्रोकरेज आती है जीएसटी। करेक्ट। तो ब्रोकरेज और जीएसटी वैल्यू होगी ना, उसका दोनों का इनपुट मिलता है, कैपिटल गेन टैक्स में वो कैलकुलेट नहीं होता, तो वो कम एज एक्सपेंस। कोई प्रॉपर्टी बेचता है, उसकी ब्रोकरेज, टैक्स कंसल्टेंट की फीस, सीए की फीस, अगर वो कोई प्रॉपर्टी में ब्यूटिफिकेशन मॉडिफिकेशन करके एक्सपेंसेस में आता है और वो डिडक्ट हो कैलकुलेशन में। एंड वो सर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में भी एडजस्ट होता है, सब में, हर गेन में कैलकुलेट होता है। तो बेसिकली अगर वो रेट टू रेट, तो उसको वो कैपिटल लॉस दिखा सकता है, क्योंकि भाई मैंने प्रॉपर्टी खरीदी 100 रुपए की, हटा दिया तो 90 रुपए की वैल्यू हुई, तो उसको कैपिटल लॉस लगेगा, ना कि कैपिटल गेन।
तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। एज ए जब भी ये क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्शन आता है, आई एम श्योर हर इंडिविजुअल एजेंट बोलेगा जी मेरे को जीएसटी का इनपुट नहीं मिलेगा, तो आपको उसको सिंपल बोलना है सर ये तो आपका खर्चा ही आना है। वो पूछेगा कैसे, तो आप बोलो सर ये एक्सपेंसेस में काउंट, को पता होगा आप अपने टैक्स कंसल्टेंट से। तो ये एज अ प्रोफेशनल यहाँ पे आप उसको फिर बोल ही नहीं पाएगा कुछ भी। ठीक है। आई एम टेलिंग यू दिस कम टू मी हंड्रेड्स ऑफ टाइम ऑल्सो, एंड आई एम श्योर आप सबके साथ में ही आया होगा। बट जब आप उसको ये आंसर दोगे तो आई थिंक फिर वो नहीं कुछ बोल पाएगा, क्योंकि दिस इज फैक्ट यू आर टॉकिंग अबाउट। और अगर वो तब भी बोलता है तो आप उसको अगर मैंने चैट जीपीटी भेजा है, आप एक डॉक्यूमेंट उसके साथ शेयर कर दो कि सर एज पर दिस डॉक्यूमेंट, एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्सेशन, यू कैन टेक अ बेनिफिट ऑफ दिस जीएसटी अमाउंट। ठीक है ना? एनी अदर क्वेश्चंस? मानसी मेरा एक क्वेश्चन है, बड़ा मतलब ये बड़ा है तो बड़ा बेसिक सा बट स्टूपिड क्वेश्चन मैं हमेशा पूछता हूँ, राइट? यार ये जो जीएसटी वाला है, देखो अभी मैं खाली ये पूछ रहा हूँ, अगर मैं ईएक्सपी में नहीं हूँ, ठीक है, और मैं अगर डिफरेंट स्टेट्स में ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, तो उस केस में क्या मुझे हर स्टेट का जीएसटी लेना पड़ेगा? और अगर मैं ईएक्सपी के साथ हूँ रियल एस्टेट, हाँ, अगर मैं ईएक्सपी के साथ हूँ तो मुझे जीएसटी नहीं लेना हर स्टेट का? करेक्ट। अभी इसमें देयर आर टू थिंग्स। रियल एस्टेट ब्रोकरेज इज काउंटेड to be a underlying transaction because of sale and purchase of a real estate property. तो आप उसको एज अ प्रोफेशनल फी नहीं दिखा सकते, बिकॉज आप इसके अंदर कोई प्रोफेशनल काम नहीं करते, बिकॉज ऑफ द वे द जीएसटी लॉज आर डिफाइंड एंड बिकॉज द नेचर ऑफ बिजनेस। से फॉर एग्जाम्पल आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, जैसे मैं सीए हूँ, राइट? तो अगर मेरी सीए की कंपनी है और आप दिल्ली में हो, तो मेरे को आपको आईजीएसटी दिखा के ट्रांजैक्शन कंफर्टेबली क्लोज हो जाएगी। बट बिकॉज प्रॉपर्टी बेचने का काम हो रहा है और प्रॉपर्टी दिल्ली में है, तो आपका जीएसटी का बेनिफिट इंट्रा स्टेट का आपको नहीं मिलता। सो दिस इज इट्स एन इश्यू द वे द जीएसटी लॉज आर डिफाइंड, बट वी आर हेल्बेंट टू वर्क बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी वेयर द property is located. Got it. So in that sense, I think I'm in a better position if I'm working with EXP. Yes, definitely, because EXP वो सारे headaches आप, और आपको सिर्फ आपका EXP करना है और जिसके बेसिस रहेगी। Perfect. So guys, just to give you an idea, I mean again this is a hassle जो आपने देखा होगा भी calculation, some of you are kind of getting confused, complex, but this is also one of the benefit of working with EXP, simplification. आपका सारा GST जो भी रिटर्न भरना है, आपको कमीशन आपके पास चले जाना है, वो सब EXP कर देता है। Like our accounts team, my finance team take care of all the hassles, right? कहाँ का जीएसटी नंबर डालना है, कहाँ से ट्रांजैक्शन लेनी है, कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ की है। सो आई थिंक अदरवाइज इट्स अ हैसल, एंड आई कैन टेल यू आई हैव सीन सम मेल्स जहाँ पे डेवलपर आस्क कि नहीं आप मेरे को यहाँ पे नोएडा का जीएसटी दो, यहाँ पे दिल्ली का दो, यहाँ गुड़गांव का दो, मेरे को यहाँ पे आप महाराष्ट्र का दो, जैसे गोदरेज प्रॉपर्टीज फॉर एग्जांपल। अब आप अगर जीएसटी रजिस्टर्ड आपने पुणे में प्रॉपर्टी बेची, तो आप सोचोगे यार मैं अपना पुणे का प्रॉपर्टी के लिए नोएडा का जीएसटी दे देता हूँ, विच इज़ नॉट द राइट वे। सो या तो आपके पास दो ऑप्शन बस, कल जीएसटी लो, या फिर ये है कि भाई आप में जीएसटी, तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। So I think in that way you are sitting in a better position because EXP is registered with GST, मेरा लाइसेंस है, तो उस वे में इनवॉइसिंग प्रोसेस बहुत स्मूथ है आप सभी लोगों के लिए। एनी अदर क्वेश्चन फॉर मानसी before we end the session? But it's a great insight. Thank you so much, Mansi, for sharing the live examples, like calculations also. So much clarity, guys. A good, I would say, learning from this today's session. Understand the taxation part of it. Make sure you should talk about it when you do the transactions. It's a buyer liability to deduct the TDS. NRI के case में tax liability would be different than a non-NRI case. Please understand that. जो लोग NRI में काम करना चाहते हैं, you should have a document prepared in terms of with example, so that जब भी कोई client आए आप उसको डॉक्यूमेंट शेयर कर दें, सर ये इसमें रूल लगता है, तो ये वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, and the chances that NRI will work with you will be much higher. Third, you should have a good trusted CA, you should have a good trusted lawyer, you should have a good trusted document writer, जो भी आपके लोकल मार्केट में है, and you should have a good interior and architect person or construction contractor person, because जो भी तो वो घर बनाएगा भी, और घर बनाना is not easy, so they need a contractor, they need architect, they need interior. बट जैसे ही आप प्रॉपर्टी ट्रांजेक्ट करते हो, स्पेशली जब प्लॉट्स आप डील करते हो, अगर आपके पास एक डॉक्यूमेंट हो जहाँ पे नंबर्स लिखे हों, आप बोलो कि दीज आर माई ट्रस्टेड एडवाइजर्स, ट्रस्टेड वेंडर्स, and I'm sure you must be looking forward to construct your house, not immediately but after some time, but please do consult. And this is how professionalism look like.
आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप एक वैल्यू ऐड कर रहे हो जो क्लाइंट को चाहिए भी नहीं, वो भी आप दे रहे हो। और आपको मैं बता देता हूँ, इससे पैसा भी बनता है। इफ़ यू हैव अ रेफरल अरेंजमेंट विद दीज वेंडर्स, देन दे विल गिव यू 10%, 20% of the profit also, and you can expect the same kind of reference in future. Thank you guys. Thank you, everyone.